Moving ahead, today's session shall be focused on Budget 2021. The budget this year, also like every year, was presented on 1st February 2021. RSA, as a matter of practice, always endeavors to update its clients on the legal obligations of various issues, including their compliance matters and allied business issues, to address the apprehensions and expectations that people usually have. Today, we aim to unfold all the nitty-gritties of the budget 2021, and to address the same, we have with us today for discussion 3 speakers: Shivangi ma'am, Kedia sir, and Keshav sir. I hope the session is meaningful and insightful for you all. So without further ado, I invite our first speaker for the session, Shivangi ma'am. Shivangi ma'am. Thank you, Ruchika. So, good afternoon, one and all. I'll just share my screen before I start. So, today we have gathered to discuss the digital budget, first ever digital budget, the first budget after COVID era, the budget which is claimed to be one of its type, and the budget whose motive is said to be minimum government, maximum governance. So Modi government ने ये नया budget इन सब चीजों के साथ बोलते हुए निकाला है, हम इसको discuss करते हैं. So first of all, we'll discuss tax rates. Surprisingly, and it is very unusual, हर साल budget में कुछ ना कुछ tax rates में change आता है. So always the finance bill, the memorandum has some change about the tax rate, but this time surprisingly there is no change in the tax rates. Individuals की जो tax rates हैं, new regime, old regime, वो continue करेंगी. Partnership firms will have to pay tax at the rate 30%. There is no relaxation. Companies will still have wide range of variety of tax rates, 15%, 22%, 25%, 30%. High surcharge rates are being continued. And cess is also 4%. So there is no change in the tax rates. But the government has touched upon two things in personal taxation. Personal taxation में पहला तो senior citizen के बारे में अपन discuss करते हैं. So it is much hyped change for personal taxation. And people say कि बहुत अच्छा change आया है. So सुनने में बहुत अच्छा लगता है, but it has come with a asterisk mark, terms and conditions applied. So first thing is, it's not so कि किसी भी senior citizen को tax return नहीं भरना है. This is wrong. They have defined their own category of senior citizens who will be allowed this relaxation. So the category has 3 conditions. Senior citizen should be of 75 years or more. And the person should have only pension income or the interest income from the bank in which he is having the pension account. So सिर्फ pension income और जिस बैंक में आपका account है जिससे pension आ रही है उससे interest income, ये 2 ही income होनी चाहिए. And thirdly, that individual will have to furnish a declaration. So कोई citizen इस category में fall कर रहा है, then only he will be having the benefit of not filing of return of income. But उसमें भी एक condition है कि जो बैंक है, bank will compute the senior citizen's tax liability after taking into account all the income, all the deductions and everything. और जो tax liability है, उतने amount का वो TDS काटेगा bank. So bank will become the tax expert also. The bankers who are high-priced employees, they will have to act as tax expert also to help the government doing this. Secondly, इसका एक challenge ये और लगता है कि senior citizens थोड़े nurturing चाहते हैं. They are sensitive people. वो जो अपनी wavelength अपने पुराने chartered accountant के साथ maintain कर रहे हैं, that wavelength they will never get with a banker. So it will be very difficult for them to approach bank, run behind bankers. So in my understanding, it is a very cosmetic change, which first of all, do not impact many people. Secondly, it is difficult for the senior citizens now.
The second change, which is for personal taxation, is on provident funds. Employee provident fund होता है. Employee provident fund के अंदर employer as well as employee दोनों लोग contribute करते हैं. That provident fund has a flat rate of 8.5% of interest. So employer का contribution, employee की contribution पे 8.5% का ब्याज earn करो. So it is a promised attractive high interest rate. And वो जो interest earn करेंगे, that is exempt from tax. Government का जो revenue department है, they decided to look into this provident fund also. And they realized कि जो high net worth taxpayers होते हैं, जो high net worth individuals होते हैं, they have done a planning through these provident funds. So they are contributing a higher amount in these provident funds और उसके ऊपर एक high handsome interest rate earn करके they are availing tax exemption. So government has intervened in this. Last year जो पिछला budget था, उसके अंदर they put a cap on the employer's contribution. Employer जो contribute करेगा 3 funds में, recognized provident fund, approved superannuation fund and national pension scheme, इन तीनों के अंदर employer is now allowed to just contribute 7.5 lakh rupees. अगर उससे ज़्यादा contribution हो रहा है, so जो ऊपर का amount है उसका deduction employer को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ it will be taxable in the hands of assessee also. And this year they have come with the other leg of the amendment जो कि फाइनेंस बिल 2021 लाया है. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे भी उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ कैप लगा दिया है. एम्प्लॉयज अभी तक कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आज भी कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट 2.5 लाख से ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम अर्न करी जाएगी, दैट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट. सो sort of they have put a cap on employees contribution that employee will contribute 2.5 lakh only because that is only the interest yielding amount. Uske upar they will not earn any interest. So a cap from employee side is also levied. No, interest they will earn, but it will not be. It will not be taxable. It will not be taxable. They will have to pay the tax on it. So we can understand with the help of one example. In this case, अपन समझ रहे हैं कि 25,000 per month एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो एनुअली दैट पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग 3 लाख ऑफ रुपीज. अभी तक 3 लाख पे 8.5% की रेट से उसे इंटरेस्ट मिलता एंड द एंटायर इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट. ही विल अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट. बट नाउ एवरीबडी विल हैव टू कैलकुलेट 2.5 लाख पे इंटरेस्ट एंड बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट. सो 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट विल बी एग्जेम्प्ट. रिमेनिंग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्लैब रेट. सो वी हैव टेकन ऑल द 3 स्लैब रेट्स इन दिस एग्जांपल कि अलग अलग उनकी टैक्स इंसिडेंस आएगा उनके ऊपर. सो दिस वाज द चेंज फॉर पर्सनल टैक्सेशन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ बिग चेंज व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस बजट. अ बिग मैसेज मोदी गवर्नमेंट हैज गिवन. दे आर सेइंग it very loud and clear that you cannot afford to be on the wrong side of law. You have to be aligned with them. आप अपनी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं. अभी तक क्या होता था, किसी के सर्च हो गई, सर्वे हो गया, एंड सर्च के अंदर the department has come across many false entries, bogus entries, all the violations, and a huge tax liability is computed. वो ह्यूज टैक्स लायबिलिटी को लेके असेसी सेटलमेंट कमीशन के पास चला जाता था. सेटलमेंट कमीशन एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है जहां पे आप अपनी ट्रू इनकम सेटलमेंट कमीशन के सामने देते थे. सेटलमेंट कमीशन उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालता था एंड पूरी पेनल्टी वेव कर देता है एंड आपको प्रोसिक्यूशन से भी छुटकारा मिल जाता है. सो यू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन. But now what they have done, they have abolished this settlement commission. अब आपके पास में कोई जगह नहीं है अपनी ट्रू पिक्चर को ले जाके बताने का एंड बहुत ज्यादा पेनल्टीज आजकल लग रही हैं. सो you don't have any way to be free from them. So settlement commission in itself is abolished with immediate effect. From 1st February only it has come to end. And मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक खून माफ होता है. सो इनकम टैक्स में बहुत सारे खून माफ हो जाते थे. जब भी आप पकड़ में आए तब आप अपनी सारी चीजें लेके सेटलमेंट कमीशन के पास चले जाओ एंड यू विल गेट वेवर. बट नाउ नथिंग इज माफ. एवरीथिंग इज
taxable and everything is penalizing. So you will have to be very conscious about this thing. In the lines of this, let's understand one more thing, that the department has become faceless now. They are making the use of the available technology better than we are doing. Every forum has become faceless, chahe wo assessment ho, chahe CIT appeals ho, and with this budget, they have made ITAT also faceless. So you don't know who is the person next to you on the other side of the table to whom you are explaining your things. So gone the days when you could have managed things with the department, and now department wants you to comply with proper law, to comply with the procedures which are there, a proper record maintain kare, aggressive tax planning na kare. So department is expecting that much from you, and going forward you have to do it. You cannot be behind the department on this, because otherwise you will only lose. ऐसे एक और छोटा अमेंडमेंट है, लास्ट ईयर एक पेनल्टी इंट्रोड्यूस करी थी. दैट पेनल्टी वाज फॉर फेक इनवॉइसेस. फेक इनवॉइसेस मींस आपने कोई इनवॉइस काटा, उसकी एंट्री नहीं करी, सो यू omitted making entry of that invoice. You made a false entry. There was some other invoice, or there was no invoice, but you made some false entry. So what department did from last year, they are imposing penalty of the amount which is there on the invoice. 100% amount ki penalty thi. Now department is saying if that penalty is 2 crore or more, they will provisionally attach your assets also. They want to safeguard their interest. उनको लगता है 2 करोड़ से ज्यादा की आपकी पेनल्टी की लायबिलिटी है, तो वो आपके असेट अटैच करके अपने पास में रख लेंगे. So I think it's the time when one will have to see what is written on the wall. Department will not be sympathetic with you. They don't understand what problems you are having, what business problems you are having, what are the business compulsions. They will understand their language and the language which is written in the law. So we will have to manage our affairs. हमें सब कुछ बराबर तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ना settlement का कोई scope है, हम सामने वाले person को जानते नहीं. It's all faceless, and there are lot of penalties and prosecution and attachment things going on. With this, let's understand this also, that department has picked up the speed. Department now wants us also to catch up. वो प्रॉपर डिजिटलाइजेशन का काम में ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं. दे आर मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, सो दे आर एबल टू डू थिंग्स डिजिटली इन अ वेरी स्पीडी मैनर, एंड दे वांट अस आल्सो टू कैच अप विद देम, ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म हो. एक ईयर खत्म हुआ है तो जल्दी से उसका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए. सो अभी तक हम रिटर्न फाइल करते थे जुलाई में, अक्टूबर में, and we had time to revise that return up till 31st March. मतलब last day of assessment year तक या तो हम late return file कर सकते थे, या फिर कोई गलती मिल गई हमें तो हम उसे revise कर सकते थे. But now we cannot revise the return up till the last day of the assessment year. We will get 3 months less. हमें 31st December तक ही समझना पड़ेगा कि हमें return file करनी है finally, या फिर हमने कोई गलती कर दी है, so we'll have to revise the return. So from 31st March, the date has come down to 31st December. So 3 months time the department has taken from us. And if we see about this year, the coming year, जिसकी return भरने वाली है, so you will have to file return in July 21 or October 21, and you will have time to revise it up till 31st December 21 only. Department is also speeding up with this. They are saying, okay, you file return earlier, you revise it earlier, we will process it earlier. So they used to take 12 months of time. आपने जिस साल में रिटर्न भरा उसके एंड से 1 साल वो लेते थे to process the return. But now they are saying, okay, we will process it in 9 months. So when they are curtailing our 3 months, they are curtailing their 3 months also. So they are trying to be fair. And fairness उनकी इससे और पता पड़ती है कि अभी तक partners जो हैं, they have to file their return जब फर्म की ऑडिट होती है, वही उनकी डेट होती है. सो फर्म हैज टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड एंड फाइल रिटर्न बाय 31st October. सो पार्टनर वाज आल्सो अलाउड टू फाइल इट अप टू 31st October. बट विद द ग्लोबलाइजेशन, विद इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, many firms are having international transactions, or
उनको ट्रांसफर प्राइसिंग के लॉ से कंप्लाई करना पड़ रहा है. दे हैव टू फाइल ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट एंड इन सच सिनेरियो दे आर अलाउड टू फाइल देयर रिटर्न अप टिल 30th नवंबर. एक महीना उन्हें ज्यादा दिया है. सो पार्टनर की लायबिलिटी फर्म की लायबिलिटी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती. सो दे हैव अलाउड द टाइम टू पार्टनर ऑल्सो कि आप भी 30th नवंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. सो द कंसर्न्स who are required to get their accounts as per the transfer pricing provisions and furnish a transfer pricing report, and who are allowed to file the return up till 30th November, the partners of that firm can also file the return up till 30th November. But other concerns who are not governed by the transfer pricing provisions, उनका 31st October already था, जो कि firm के date of filing से align था, so that is continued. Not only filing is speeded, but also the passing of order is also speeded. Initially, इसमें अपन टेबल में देखेंगे कि डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा टाइम लेता था स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए. सो आपका रिटर्न पिक होता था स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए एंड डिपार्टमेंट यूज्ड टू टेक 24 months, then 21 months, then 18 months, 12 months to pass the order. Now they have cut it down. They are saying that we are passing order in 9 months now. We are that much efficient that we'll pass order in 9 months. Not only this, we will issue you notice in 3 months only. अभी तक हम असेसमेंट ईयर के एंड से 6 महीने तक नोटिस का वेट करते थे, डरते थे कि सितंबर नहीं आया, 30 सितंबर नोटिस आ सकता है. बट नाउ उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 30 जून तक ही बता देंगे आपको कि आपको हम नोटिस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. सो दे आर gearing up, they are speeding up, so as to close 1 year in the earliest possible manner. बट यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट ही काम नहीं कर रहा है जल्दी. Here we also have to think of ourselves that how much speedy we are. We cannot be behind department. If department will issue notice early, if it will pass the order in 9 months, we will also have to ready with all our details, all our proper records. Within that period of time, we will have to give it to our chartered accountant who can analyze and upload the submissions, and chartered accountant will also take time because of now everything is faceless. So management wali cheez gayi. So he will also have to apply mind. So it's the time to gear up. हम अपने records आज से ही proper manner में रखें because 9 months will fly in seconds. So आज से ही we will have to do all the तैयारी and we will have to comply with proper law and maintain proper records so that हमारा assessment ढंग से हो पाए and बाद में हमें appeals के अंदर struggle ना करना पड़े. So ऐसा ही नहीं है कि डिपार्टमेंट ने स्पीड ले ली है या हमें परेशान कर रहा है. There are some relaxations also, few relaxations. One of the important relaxation is tax audit. Tax audit hits everybody. Tax audit में अभी तक क्या था कि 1 crore का turnover है, so you will have to get your accounts audited. Last year they said, okay, if you are following banking transactions, if you are in a digital mode, if you are not encouraging cash transactions, then we will allow you higher turnover limit. So basically, अगर 95% receipts आपकी banking channel से हैं या 95% expenses आपके banking channel से हैं, so they say no, not 1 crore, you are allowed 5 crore of limit. We will forego you with all the compliances of tax audit. आप 5 crore के ऊपर ही tax audit कराना. So this year, in order to promote this digitalization, digital economy, and reduce compliance burden, they have raised this limit to 10 crores now. So अगर 10 crore तक का आपका turnover है, and if you are doing all your transactions via banking channel, then up till 10 crore you are not required to get your accounts audited. But the thing is that कि 5% से ज़्यादा आपका cash expense नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा आपका cash income नहीं होना चाहिए. शिवांगी जी, शायद किड़िया जी will agree. मुझे लगता है गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई once the transactions are traceable because they are through banking channel, you don't need tax audit because everything we are aware. लेकिन मुझे लगता है अब जैसे मान लीजिए related parties को payment है, now tax audit report के अंदर वो रहती है कि कितने related parties को payments हैं, quantitative details रहती हैं, ICDS से compliances हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ICDS tax audit report में रहती है ना. I think probably government is heading in a wrong direction. They feel that these things either are not relevant for them or otherwise 10 crores के
turnover that you don't have any ICDS compliances, you don't have any 48(2)B payments, you don't have quantitative details, you don't have stock valuation details. Only if the case is picked up for scrutiny, then only ये सब They will assess ask. होगा. They will ask. ICDS applicable case में अगर ICDS applicable again. ICDS applicable रहेगा. Yes. ICDS will apply when you are following mercantile basis of accounting. So maybe good for government or maybe good for us, this amendment has come. And one more welcoming thing has come. Abhi tak, after getting the assessment done, it was not the end. Your case can be reopened thereafter also. Assessment हो गया तो भी department के पास 6 साल होते थे to reopen your case, to again revisit the things जो उनसे छूट गई हैं. Now they have reduced this 6 years from 6 years to 3 years. अभी तक डिपार्टमेंट जो आपके 6 पीछे के साल खोल सकता था, अब वो सिर्फ 3 साल ही खोल पाएगा. तो बेसिकली दे आर गिविंग यू अ बेनिफिट कि ओके यू कंप्लाई विद द लॉ, हम 3 साल तक ही आपकी रीओपनिंग करेंगे. बट एट द सेम टाइम दे हैव इंक्रीज्ड इट. सो इंस्टेड ऑफ 6 years दे हैव टेकन 10 years का एडवांटेज एंड दे आर सेइंग दैट इफ असेसिंग ऑफिसर हैज एनी evidence या books of accounts या documents में, if the assessing officer understands that 50 lakh of rupees is not offered for tax, then he will have the right to reopen your case up till 10 years. So at one place they are saying, okay, we are foregoing, we'll open up till 3 years only. And at one place they are saying, no, we can open up till 10 years. So this band has increased. We ourselves can understand that it is a welcoming change or not. बड़े केसेस में 10 साल तक होने लगेंगे. हाँ, बड़े केसेस में छोटे असेसीज को परेशान नहीं होना पड़ेगा. बड़े केसेस में 50 लाख वाले केसेस में they have a right to open it up till 10 years. अभी एक नई स्कीम आई थी लास्ट बजट में, विवाद से विश्वास. So that scheme is said to be a very अच्छी स्कीम रही, उसका काफी सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले गवर्नमेंट को. सो गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्रोसेस, अ न्यू फेज, एंड एक प्रोविजन वो लॉ के अंदर ही अलाउ कर रहे हैं, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस दे आर अलाउइंग. सो दे विल बी सेटिंग अप अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, एंड द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी will help you settle the cases. So after assessment you can either go into appeal or you may settle your issue with the dispute resolution committee only. इस provision की जो guidelines हैं वो आनी बाकी है, but they have given a broad outline कि it will benefit only small assessees or the people who are having lesser income. So your returned income should be less than 50 lakh rupees. First of all, to go into the scheme, your returned income should be 50 lakh rupees. The disputed income जिस पे assessment हुआ है, that should be less than 10 lakh rupees. And जो assessment हुआ है, the assessment should not be on account of search or survey. So only if these 3 conditions are fulfilled, then only you can opt for the scheme. You have an option, it's not compulsory, you can always go into appeals. So you have an option to opt for the scheme and go to dispute resolution committee. Shortly rules will come and they will tell how the settlement will be. रामजी, इन्होंने इस तरह इसको कराया कि ये बड़ी फायदेमंद है स्कीम. जी. तो क्या फायदा होगा, मतलब सीआईटी में जाके यहाँ कुछ फायदा ऐसा कुछ? हाँ सर, the committee will have power to remove or waive penalty, and they will give you immunity from prosecution also. ये पावर होगी. So अगर आप अपील में जाते हैं और अगर आपके अगेंस्ट में डिसाइड हो जाता है तो penalty will come along. You might end up in jail because of prosecution. So the committee will have power कि वो आपकी penalty reduce कर दे या खत्म कर दे, and you will get immunity from prosecution also. And we are yet to मतलब the scheme or the rules will come and they will tell कि कितना tax pay करना है. जैसे विवाद से विश्वास में we know it's 100%. Let's see what they come with. And again, this committee will be faceless. So again, they are making full use of digitalization and they are proactive than we are. So these were few welcoming changes. So this was all from my side. Thank you. Yes. The PF में interest
के लिए कहा आपने, तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होता है लास्ट ईयर्स के भी, तो फंड्स है हमारे जी। तो इंटरेस्ट होता है। सर जो अंडरस्टैंडिंग अभी लॉ को पढ़ने से समझ आ रही है वो ये है कि आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक होना चाहिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट। यस, लास्ट ईयर्स के इंटरेस्ट को नहीं। लास्ट ईयर का दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड राइट नाउ। Yes, you can go into appeal. On that time duration, what is the that you have said, there is any limit for all or for any kind of Which time limit? 9 months and 3 months, if you have said. It's for all. It's for all. It's for all. The assessment will be committed in. For individual or corporate, it was time duration was different. No. Assessment time limit is same for everybody. So they will give order in 9 months. में जाने के बाद भी कमेटी में हो सकते हैं? नहीं, you can sail in one boat only. या तो आप सेटल करो या फिर आप लड़ो। So दोनों ऑप्शंस। परमानेंट टाइप पे गैर सोल्यूशन होने के बाद। Yes. But then पहले परमानेंट टाइप का सोल्यूशन हमारे पास सेटलमेंट कमीशन था जिसमें बड़े केसेस जाते थे। अभी जो इन्होंने सेटलमेंट कमीशन बनाना चाह रहे हैं, स्मॉल सेटलमेंट कमीशन, दैट इज फॉर स्मॉलर एसएससीज, 50 लाख रुपीस वाला। So any further queries? Thank you. Thank you so much, ma'am. I now invite Kedia sir for his insights. गुड इवनिंग। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने लंबे टाइम बाद आप चाहे अपन स्मॉल गैदरिंग में मिले हैं अपन, लेकिन मिल पाए हैं अपन। तो जो मिलने में जो एक गर्माहट होती है वो मिलके होती है। तो हमने इस बार थोड़ा प्रयास किया कि कोविड के बाद अपन मिले, थोड़ा सा हम इन्वाइट नहीं कर पाए क्योंकि स्पेस की कंस्ट्रेंट है, कोविड का है, नियम है, हमें मानने, लेकिन स्मॉल शुरुआत हुई तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस बार 1 साल बाद हम लोग भी इनफैक्ट हॉल में आए 1 साल बाद ही ऐसा गैदरिंग के लिए। हाँ, भी गवर्नमेंट कंटिन्यू बात कर रही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 2 कदम बढ़ते हैं आगे और 1 कदम पीछे हट जाती है गवर्नमेंट वापस से। कि तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात करते हैं, उसके रिवर्स भी काम करती है गवर्नमेंट साथ साथ। मतलब एक तरह से कानून को सही कर रहे हैं और 1 कदम करके कानून को गलत भी कर रहे हैं। तो अब आप बात करते हैं क्या क्या इन्होंने जो किया है, अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या किया है इन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट है ESI PF। ESI PF जो होता है सभी जानते हैं कि उसमें एक शेयर होता है एम्प्लॉय का, एक शेयर होता है एम्प्लॉयर का। जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स 43B। वो ये कहता है कि आप जो आपका एम्प्लॉयर शेयर है वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक आप जमा करा सकते हो। आप लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक आप उसको जमा करा दोगे तो इनकम टैक्स में रिडक्शन मिल जाएगा। एक होता है एम्प्लॉय शेयर, वो भी जमा कराना होता है। तो एम्प्लॉय शेयर को इनकम टैक्स में माना गया है इनकम। पहले तो इनकम हो गई, अब उसको जमा करने तो उसका आपको खर्चा मिलता है कि आपने जब भी जमा कराया। उसका एक सेक्शन अलग है, उसमें भी ये कि टाइम पे जमा कराना चाहिए, लेट जमा कराओगे तो डिसलॉ हो जाएगा। अभी तक ये कंट्रोवर्सी हो रही थी कि लेट जमा कराओगे तो ड्यू डेट क्या मानी जाएगी, लेट जमा कराओगे तो ड्यू डेट क्या मानी जाएगी एम्प्लॉय शेयर के लिए। कुछ केस ऐसे कह रहे थे कि
आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आप उसको जमा करा दोगे तो आपको खर्चा मिल जाएगा। कुछ एक कोर्ट कह रहे नहीं साहब, तो गवर्नमेंट का भी व्यू था कि आपने डिले किया, एक भी दिन डिले किया तो डिसअलाउ हो जाएगा, ये आपको अलाउ नहीं होगा। एम्प्लॉय का शेयर एक डिले हो जाएगा तो आपको अलाउ नहीं होगा। इस पर काफी लिटिगेशन भी हो रहा है अभी भी। आपने कहीं के देखा भी होगा 143(1) में जो आती है इंटीमेशन, वहां भी डिसअलाउ कर रहे हैं एम्प्लॉय शेयर के लिए। एक भी दिन डिले होते ही वो डिसअलाउ हो रहा है। वो सभी केस चल रहे हैं अपील में। राजस्थान हाईकोर्ट अपने फेयर में था, इसके फेयर में था कि नहीं साहब ये आप लेट जमा कराओगे तो आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने अब इस बजट में क्लैरिफिकेशन लेके आ गए हैं कि इसके अंदर कोई भी माफी नहीं है। आपने एक भी दिन लेट जमा कराया एम्प्लॉय का शेयर तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। और ये चीज करिए इन्होंने एक्सप्रेशन के जरिए। इसका मतलब पहले से लागू जाएगा इस कानून। जो पुराने अपने केस चल रहे हैं वहां भी ये कानून जो है लागू हो जाएगा। तो अगर आपने पीएफ या ईएसआई लेट जमा कराया है एक भी दिन तो एम्प्लॉय का शेयर आपको ऐड हो जाएगा, इनकम मान ली जाएगी आपकी। हाँ कोविड के टाइम पर मई अप्रैल का शेयर था ना, हाँ उसका भी इंटरेस्ट दिखा रखा है डिपार्टमेंट ने। हाँ एक तरफ तो उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी डेट, और हाँ। ऑनलाइन पे देख रहे हैं तो इंटरेस्ट दिखा रहा है कि आप लेट पेमेंट कराए थे वो जमा कराए। हाँ, तो ड्यू डेट तो अगर एक्सटेंड होगी तो वो उसका फायदा तो मिल जाएगा। जो इसे पीएफ में अगर ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। तो आ ही नहीं रहा ये चीजें, वो तो आज भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखा रहा है। अच्छा। लेट जमा कराया है। हाँ। उसका वो सिस्टम में वो लगा, अगर इसे पीएफ में ड्यू डेट अगर एक्सटेंड हुई है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अब मतलब ध्यान रखना कि एक भी दिन डिले होगा। अब आपको इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं और इसमें सभी की डिले होती है, एक 2 दिन की डिले। इसमें डेट होती है 15 तारीख होती है, नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख। लेकिन देखा गया है कि 16, 17, 18, 20 तक जमा कराते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना होगा कि ये बहुत बड़े हाई स्टेक है। एक भी दिन डिले हो गई तो पूरा खर्चा आपका आपके जो इनकम मान लिया जाएगा, ऐड हो जाएगा इनकम में। एक है टीडीएस। टीडीएस हम सभी जानते हैं कि टीडीएस इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, कमीशन पे हम टीडीएस काटते हैं। टीडीएस में अगर सामने वाले ने पेन नहीं दिया है उस केस में आपको 20% रेट से टीडीएस काटना पड़ता है नॉर्मली, 20% से। बाकी तो रेट दी हुई है सबने 1%, 2%, 5%, 10%। लेकिन अगर उसने टीडीएस पेन फर्निश नहीं किया है तो हमें अब तक 20% टीडीएस काटना पड़ता है उसका। कुछ एक को छोड़ के ई कॉमर्स के अंदर 5% है, और अभी हम डिस्कस करेंगे परचेज ऑफ गुड्स, उसमें 5% है। नॉर्मली इट इज 20% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अगर आप पेन, सामने वाला पेन नहीं देता है आपको। ये अभी से एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ये। तो इसी तरह टीसीएस के अंदर है, सेल ऑफ गुड्स है, स्क्रैप सेल है। वहां अगर व्यक्ति जो है पेन फर्निश नहीं करता है उस केस में नेक्स्ट स्लाइड 5% टीसीएस कटेगा अगर सामने वाले ने फर्निश नहीं किया आपको। इसमें भी सेल ऑफ गुड्स पर 1% है। क्लियर है? ये तब तक करते रहे अपन कि आपको सामने वाले का पेन लेना जरूरी हो गया, इसलिए अगर पेन नहीं लोगे तो हायर रेट से टीडीएस या टीसीएस जमा होगा। अब गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ गई। अभी तक केवल उसका पेन ले रहे थे, अब उसका आप इनकम टैक्स रिटर्न भी लोगे 2 साल का। बात नहीं आएगी। अभी तक तो आप केवल उसका पेन ले रहे थे कि भैया आपका पेन नंबर क्या है, उसने पेन दे दिया आपको, बात खत्म हो गई। अब आप कहोगे कि भैया 2 साल के तू रिटर्न भी लिया, तू इनकम टैक्स रिटर्न तुमने फाइल किया है या नहीं किया है। फिर आप कि आपको पेन के साथ भी अगर पेन नहीं दिया, उसने पेन दिया उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भी देना पड़ेगा आपको उसका, पेन नहीं देने वाले का, पेन देने वाले का भी। अच्छा, मतलब जिसका भी टीडीएस काटेंगे उसकी पेन के साथ है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भी लो। और कितने साल की लो? 2 साल की। लास्ट 2 साल की रिटर्न को लेनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फिर आपको उसमें 5% रेट से उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आपको एक कंप्लाइंस करनी पड़ेगी कि भाई लास्ट 2 साल के उसके रिटर्न की कॉपी आपको लेनी होगी।
अगर पैन भी नहीं दिया उसने तो वो तो नेचुरल, पैन भी नहीं दिया तो उसने उसकी रेट हाई हो जाएगी, 20% हो जाएगी फिर वो। अगर उसने पैन भी नहीं दिया, इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं दिया है तो पैन वाली रेट हाई होती है, 20% रेट होती है, तो उस पर कट जाएगा वो। तो पैन दे दिया और रिटर्न नहीं दिए तो 5% पे आपको टीडीएस या टीसीएस आपको जमा कराना होगा। तो अभी आपको जैसे ये जो लॉ है ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। 1 जुलाई मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल होगा। तो आपको 31 मार्च 20 की रिटर्न चाहिएगी और 31 मार्च 21 की रिटर्न चाहिएगी आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद में। तो अभी आपको इमीडिएटली 31 मार्च 20 की रिटर्न को लेनी पड़ेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। होगा एप्लीकेबल 1 जुलाई 2021 से। और रिटर्न से मतलब केवल आईटीआर तो नहीं है? हाँ भाई आईटीआर ही है। नहीं आईटीआर ही, बस रिटर्न फाइल हो गया नहीं हो, ये आपको जानना है आपको। तो ये 2 साल की आपको बहुत एडिशनल कंप्लाइंस है, ये आपको ध्यान रखनी है इस बार 1 जुलाई 2021 से। ये हमने टेबल बनाई है, हम देख जिससे आपको मालूम पड़ेगा क्या टीडीएस होएगा अगर वो अपना रिटर्न देता नहीं है या पैन देता नहीं है। कंपैरेटिवली आप समझ पाओगे। जैसे 194A है सपोज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इस पे अब क्या रेट होती है, 10% टीडीएस काटते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। अब सामने वाले ने पैन भी दिया नहीं और रिटर्न ऑफ इनकम बोथ पैन एंड रिटर्न आर फर्निश्ड, तब 10%। अगर उसने दोनों दे दिया, उसने पैन भी दे दिया और रिटर्न ऑफ इनकम भी दे दी, रिटर्न दे दिया अपना, तो वही दोनों रेट जो है 10% रेट से काट लोगे आप टीडीएस। अब सपोज उसने पैन दे दिया और रिटर्न ऑफ इनकम नहीं दी तो ये 20%, क्योंकि क्या है इसमें ट्वाइस द रेट ना, उसमें लिखा हुआ है ट्वाइस द रेट। इसमें ये लिखा है ट्वाइस द रेट। अगर उसने रिटर्न फर्निश्ड नहीं दी आपको तो ट्वाइस द रेट हो जाएगी, इन तीनों में से जो हाईएस्ट रेट हो गया उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा आपको। अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम अपनी रिटर्न दी नहीं है तो आपको जो हाईएस्ट हायर है उनमें से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ट्वाइस रेट कितनी हो गई, 10 की 20 हो गई, तो आपको 20% पे टीडीएस काटना होगा अगर उसने रिटर्न नहीं दी अपनी। पैन भी नहीं दिया, रिटर्न भी नहीं दिया, 20% ये हाईएस्ट रेट है, 20% पे टीडीएस कटेगा। इसी तरह C194C में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नॉर्मल रेट है 1%, 2%, दोनों फंड्स करती तो सेम रेट 1 to 2% ही कटेगा। अगर उसने रेट ऑफ इनकम नहीं दी अपनी तो 5% हो जाएगी हायर रेट। प्राइस तो होती है 2 और 4%, तो आपको 5% से टीडीएस काटना होगा। और पैन भी नहीं दिया और रिटर्न ऑफ इनकम भी नहीं दी तो अगेन वो 20% पे आ जाएगा फिर वो। ब्रोकरेज कमीशन 10-20, रेंट 20-20, 10% है तो ट्वाइस 20% हो जाएगा। प्रोफेशनल चार्ज 10-10-20 हो जाएगा, 10% है प्रोफेशनल की तो डबल 20 हो जाएगा। समझ आ गई ना। अगर आप सामने वाले रिटर्न अगर फर्निश नहीं किया आपको 2 साल की तो डबल रेट हो जाएगी, या जो हायर है वो हो जाएगी। अभी अपन सब जाने सीरो गुड्स पे अपने टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं आजकल, उसमें रेट है 0.1% रिटर्न नॉर्मल रेट टीसीएस की, जो भी 0.75 है 31 मार्च 21 तक। नॉर्मल रेट है 0.1%। डबल तो होती है क्या होती है, डबल तो 0.2 होती है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है हायर, तो ये 5% हो जाएगा। ये मतलब अगर टीसीएस काट रहे हो आप, सामने वाले ने रिटर्न फर्निश नहीं किया आपको तो उसकी रेट हो जाएगी 5%। और इसमें पैन के अंदर भी यही रेट है 5%। हाँ, रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो तो कैसे कोई 2 साल का रिटर्न देगा? मेरी इनकम 2 लाख की थी। नहीं ये कह रही है इनकम भी कम हुई उसकी।
तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसमें सेक्शन में लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन जो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, या तो अंडरटेकिंग तो गलती होती है। एक कंडीशन और है ना कि उसका टीडीएस 50,000 रुपए हाँ, हाँ। भी कटा हुआ होना चाहिए, तभी वो पर्सन होगा। इसमें एक और कंडीशन है, मैं मिस हो गया मेरे से, 2 साल की रिटर्न के साथ में 50,000 रुपए भी उसका टीडीएस या टीसीएस बनता है। अब ये अलग बात है कि अब कैसे जानेंगे हम उसका टीडीएस कितना कटा है, जमा हुआ है टीसीएस, मालूम कैसे पड़ेगा अपने को वो? हाँ, do not want to provide their income tax. For example, Reliance. We are selling to Reliance. So Reliance Retail Limited तो अपना income tax कैसे देगी? मतलब अभी कुछ गवर्नमेंट या तो उसका, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम ले है कि आप कोई टैब दे दे वो कि पैन से आप मालूम कर लो कि रिटर्न फाइल हुआ है नहीं हुआ है। मे भी अभी कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन अभी तो स्टेचुटरी कंपनी से करना पड़ेगा उसको, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, उनको पता है कि अब नियम है तो ये नियम है, लेकिन उसका कुछ ये टैब दे दें ऐसा कुछ, क्योंकि कुछ और भी इशू है, पर्सनल इशू भी है। रिलायंस तो रिटेल फिर भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जो कोई अनलिस्टेड हो, कोई सीक्रेसी भी होती है सबकी कि किसका क्या रिटर्न भर रहा है, आप जान जाओगे उसकी इनकम कितनी है, तो आप तो बहाने उसकी इनकम जान जाओगे भाई, तो उसका कोई इसको शेयर करना चाहे नहीं कोई। किसी को माल बेचते हैं तो हाँ, तो ये दिक्कत रहेगी ये। पर्पस तो स्टेटस चेक करना है, मतलब कि उसकी रिटर्न फाइल है या नहीं है। हाँ, रिटर्न में क्या है ये थोड़ी देखना। मतलब अभी एक्नॉलेजमेंट के बिना रिटर्न फाइलिंग का एविडेंस कुछ दूसरा है ही नहीं कोई, है ही नहीं कोई, एक्नॉलेजमेंट कंटेन्स द टोटल रिटर्न इनकम, उसमें इनकम होती है। अभी तो अपन को एंश्योर ही करना है कि he has filed or not only। नहीं इंश्योर कैसे करोगे आप, नेट पेमेंट कैसे करोगे? नहीं भाई, ऑडिटर जो है ऑडिट करेगा, टैक्स ऑडिट करेगा, सुनो टैक्स ऑडिटर आएगा, वो ऑडिट करेगा। आपने तो विश्वास किया भी ये बड़ा आदमी है, रिटर्न फाइल करता होगा, लेकिन ऑडिटर कहेगा बताओ भी कहाँ है, ऑडिटर देना पड़ेगा कि टैक्स कम कटा, उसको देना पड़ता है रिपोर्ट में टैक्स ऑडिटर को कि भी टैक्स कम कटा। अब वो आपने तो उस पर विश्वास कर लिया कि साहब ये अच्छा आदमी बड़ा आदमी, लेकिन वो कैसे विश्वास करेगा? टैक्स ऑडिटर कहेगा लाओ भी, मैं तो विश्वास करूंगा, मेरे को तो कॉपी चाहिए उसकी, कॉपी आपका है तो ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट देगा साहब कि आपने कम रेट से काटा टीडीएस। तो उसका भी गवर्नमेंट में टैप का कोई मैकेनिज्म लेके आया कि भाई ये नहीं आईटीआर से आपको एक्नॉलेजमेंट होगी, काम खत्म। तो इसमें एक कंडीशन हो रही है 50,000 रुपये अधिक, वो भी टीडी उसके रिटर्न से मालूम पड़ेगा, उसके बिना दिक्कत होएगा। उसका 26 डेज कैसे निकालेंगे अपन? तो आपको उसकी इनकम ही नहीं, उसके ट्रांजैक्शन समझ जाओगे। तो ये बड़ा पता, मतलब इट्स नॉट इज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा टूल दे देगी कि आप पैन नंबर से चेक। अच्छा, जीएसटी में है ना, जीएसटी में अभी भी है कि जीएसटी नंबर से आपको निकाले तो कि रिटर्न फाइल किया है नहीं किया है, तो ऐसा उसका टैब दे दे लोग, कोई ऐसा कोई स्कीम के अंदर दे दें, ऐसा कोई निकाल के। नहीं देखिए, अब सवाल ये है क्रिया जी कि अगर सरकार के पास ये सूचना ही है हाँ कि उसने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो सरकार के पास बहुत सारे मैकेनिज्म है अंडर दी लॉ आल्सो कि वो उसको एनफोर्स कर सकते हैं। तो जब आप एक ऐसा कॉमन टैब दे रहे हो जिससे एनीवन कैन असर्टेन कि इसने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है, तो फिर मेरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसे फोर्स करूं कि मैं रिटर्न फाइल करूं? गवर्नमेंट ही चाह रही है कि आपस में जीएसटी में ना कि पुलिस अपनी बन जाए, उनके लिए भी जैसे जीएसटी में ना कि अपनी बन जाए पुलिस, भैया तू रिटर्न भर, तू ये तो मैं तेरे काम नहीं करूंगा, मैं अपने आप ही सिस्टम चलता रहे कि गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं पड़े नोटिस देने की, आप ही आपस में कर लो झगड़ के, अभी तुम्हारे से काम नहीं करूंगा कि तुम रिटर्न नहीं भरोगे तो काम आउट जाएगा अपने आप ही, गवर्नमेंट को नोटिस देने की जरूरत ही नहीं। अभी एक अपने पास स्कूटी का नोटिस आया हुआ है जिसमें अपन ने टीडीएस काटा, एसएससी ने काटा, उसने रिटर्न नहीं भरा, उस बेस पे स्कूटी अपनी पिक कर ली इन्होंने कि भाई इन्होंने टीडीएस नहीं काटा है, तो वो कह रहे हैं अब उन्होंने नोटिस दिया कि खर्चा डिस्कवर कर दिया जाए कि उसने रिटर्न नहीं भरा। नहीं तो वो तो स्विगी की अभी बेंगलोर में जो हुआ है, फ्लिपकार्ट स्विगी, उनमें ये हुआ है कि उनके जितने भी वेंडर्स थे, जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने रिटर्न्स नहीं भरे। तो इसी चक्कर में लगता है मुझे लेके आए ये पूछ रहे ऐसा कि भाई इसको इनको फोर्स करेंगे भाई आप रिटर्न भरो, जिससे आप काम कर रहे हो वो रिटर्न भरे, इनकम टैक्स रिटर्न भरे। हाँ अरे बहुत अधिक हो गया, वो तो बड़ी डेट पे ऐसी हो गई कि आपकी प्रॉफिट ही सब हो जाएगा। हम अमेज़न के साथ में काम करते हैं, उनसे कैसे लेट्स गो, होपफुली गवर्नमेंट भी स्कीम लेके आई कुछ, जैसे टैब वेब के लेके आई, एटलीस्ट में तो हो जाए कुछ पैन से अपनी जानकारी ले सके। तो ये इशू आएंगे कि ये
कॉन्फिडेंशियल इशू आएंगे, ये पहले मैं लेता हूँ। हाँ, अब ये तो होगी नॉन रिटर्न की वाली बात। अब एक और बम्बार्डमेंट लेके आए, बम लेके आए हैं कि आप जितने भी जिसे परचेज करते हो गुड्स, उसके ऊपर भी आपको 0.1% से टीडीएस काटना होगा। अगर आप 10 करोड़ से अधिक माल टर्नओवर है आपका, 10 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है, और जिससे माल ले रहे हो उससे 50 लाख से अधिक का परचेज करने जा रहे हो, तो आपको 50 लाख से अधिक जो एक्सेस अमाउंट है उस पे 0.1% से आपको टैक्स काटना होगा। आई बात समझ में? जो भी आप परचेज कर रहे हो, अगर आप 10 करोड़ से अधिक हो आपका टर्नओवर है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका टर्नओवर 5 करोड़ ही है तो आपको नहीं काटना। आपको 10 करोड़ टर्नओवर आपका हो गया पिछले साल का, तो आपको 0.1% से टीडीएस काटना पड़ेगा 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे, 0.1% से। दोनों तरफ हो गया ना, उस तरफ तो टीसीएस काटेगा, सेलर तो अब ये कि भाई परचेज पहले इसमें क्या है कि पहले 194 जो नया सेक्शन है वो लगेगा। पहले परचेजर दिखेगा कि भैया टीडीएस काटना है, जो सेलर होगा वो देखेगा कि सेलर चेक करेगा कि भैया परचेज वाले ने टीडीएस काट लिया नहीं काट लिया। अगर परचेज वाले ने टीडीएस काट लिया तो टीसीएस वाले कुछ भी काम नहीं करना, पहले देखा जाएगा परचेज वाला नियम कि परचेज पे टीडीएस कट रहा नहीं कटा। तो आप जैसे टीसीएस काट रहे हो तो आप फोन करके पूछोगे भैया तुम काट रहे हो टीडीएस, नहीं काट रहे तो हम काट रहे हैं टीसीएस भी। तो आपको ये कंप्लाई करनी पड़ेगी आपस में बात करके कि कौन टीडीएस काट रहा है, वो नहीं काटे तो मैं टीसीएस काटूं। सर अभी जो प्रैक्टिकल है वो तो ये हम बिल तो साथ ही जोड़ देते हैं टीसीएस, तो वो तो फिर बाद में 3 महीने बाद पता चलेगा उसका। तो अब वो तो क्या है, इनिशियली आप पहले ही मालूम कर लो भी तुम 10 करोड़ से ऊपर हो, छोटे हो बड़े हो, आप पहले ही पूछ लो उसका, केवाईसी कर लो, फिर तय करोगे कौन काटेगा, तू काटेगा मैं काटूंगा। उसके हिसाब से आपको बिल में ऐड करना पड़ेगा पहले से डिसाइड करके एडवांस में ही कि भाई कौन टीडीएस काटेगा या टीसीएस काटना है मुझे। तो सेलर कहेगा कि भाई आप मैं टीसीएस काटूंगा तुम टीडीएस काट लोगे मेरा, ये बात आपको पहले तय करनी पड़ेगी आपको। उसके हिसाब से फिर अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करके आपको करना पड़ेगा कि अपन सपोज अपन सेलर है तो अपन सेफ तभी है ना कि टीसीएस काट के ही चले। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। अगर परचेजर के ऊपर पहली लायबिलिटी है, देखो परचेजर की लायबिलिटी पहले है, 194O को अधिक इन्होंने दिया है। नहीं, ये तो सेलर है, ये तो अपना ऑब्लिगेशन कर देंगे भाई। इनका कहना ये है कि मैं तो इस झंझट में नहीं पड़ता, मैं तो सेलर हूँ, 0 में आ रहा है, वो सेट भी हो गया। हाँ सेट हो गया है, बिल में लगा रहे हैं। अब वो भी दो वे टीडीएस कटेगा फिर वो अगर परचेजर ने भी ये थिंकिंग करके चला तो दिक्कत वो भी क्या। हाँ मतलब ये कंफ्यूजन है भाई, बड़ी कंपनी कंफ्यूजन होना जरूरी है। सभी बैठ के फोन पर जो बात कर रहा हूँ मैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर चलता है सारा काम। हाँ वहां कोई पॉसिबल ही नहीं कि आप चेक करो पहले उसका। ये दिखते आएगी इसके अंदर कि भी वैसे सेक्शन में जो 194O को प्रायोरिटी देंगे, पहले 194 को देखा जाएगा। क्यों है और टीडीएस अगर नहीं दिया तो 5% जो है अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टीडीएस नहीं दिया रिटर्न, वो रिटर्न अलग लेनी पड़ेगी परचेजर की, जो परचेज कर रहे उसका परचेज कर उसका रिटर्न सब देना पड़ेगा आपको, सेल के केस में भी और परचेज केस में भी। 10 करोड़ से अधिक अगर आपका टर्नओवर है तो आप परचेज पे भी टीडीएस काटोगे, सेल पे भी काटोगे, आप चेक करके दोनों पे काटना पड़ेगा। मतलब आपको दोनों पे काटेगा ना, टीडीएस भी काटेगा, टीसीएस भी काटेगा, परचेजर पे अलग लग रहा है। और नहीं उस पर लिखा हुआ है कि अगर आपने परचेज पे काट दिया तो उस पर टीसीएस नहीं करना आपको। सेक्शन में गेन होने अगर आपने परचेज पे टीडीएस काट लिया तो टीसीएस अगेन कटेगा नहीं, वो कानून में दे दिया इन्होंने इसको। टीसीएस में तो ये भी है ना कि आपकी रिसीव 50 लाख हो जाएगी तो हाँ तो आपको यहाँ क्रेडिट के ऊपर ही है, क्रेडिट और पेमेंट विच वाज अर्लियर, यहाँ वही है क्रेडिट और पेमेंट विच वाज अर्लियर। तो पहले आप डिसाइड कर लोगे फिर टीसीएस वाला डिसाइड करेगा, ऐसा कानून नहीं सोचा कि पहले आप डिसाइड करोगे परचेज वाला, परचेज से बच गए तो उस पर टीसीएस होगा फिर उसके ऊपर। तो बायर को सिर्फ रिटर्न ही नहीं लेना पड़ेगा, ये भी पूछना पड़ेगा कि टर्नओवर कितना है। हाँ उसके ऊपर फिर उसका 10 करोड़ से ऊपर तभी होगी। और वो टर्नओवर भी जानेगा। बिल्कुल टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर या नीचे आएगा, मतलब वो ऐसा हम सेलर है, किसी को माल चाहिए थे कि बहुत बड़े करा रहे हैं, बड़े चल गया उसको। वो तो अभी मालूम टीसीएस से मालूम जिसकी में मालूम पड़ गया ना उसको, 10 करोड़ से ऊपर हो आप नीचे हो। हाँ मतलब ये हाँ आईटीआर से, हाँ बिल्कुल आईटीआर से एकदम आपको मालूम है कौन पार्टी है, कैसी है, क्या है। ये तो बड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात हो जाएगी। ये बहुत बड़ा आने वाला है, तो इसको अभी से ही
प्लानिंग कर लेना चाहिए आपको, कौन कौन से अपने वेंडर है, कहाँ है, कैसे हैं, उसमें किसकी सर ये पेन वाला रूल्स एम्प्लॉइज भी लागू होगा सैलरी में? पेन का तो अभी लगता है ना, पेन के ऊपर तो नहीं पेन नहीं है, पेन नहीं और आईटीआर लेने वाला 192 पे नहीं है, आईटीआर वाले भी नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें जो है नहीं, नीचे भी डालना है, लिखा है उसमें नीचे डालना ये है। सैलरी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये इनकम टैक्स सेक्टर का, मतलब एम्प्लॉय से लेना नहीं है आपको, सैलरी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये एम्प्लॉय से आपको लेना नहीं है। हालांकि एम्प्लॉय तो देने में उसको पता है सैलरी कितनी है, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे कोई एम्प्लॉय के केस में। ये मेरे एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, मैं आपको अगेन रिकॉल कराने के लिए कि दोनों प्रोविजन आप लगेंगे साथ साथ, सेल पे भी और परचेज पे भी। तो अभी हम कर ही रहे हैं कि अगर 50 लाख से बहुत सेल कर रहे हैं हम, तो रिसीव अमाउंट पे उस पर हम टीसीएस लेके जमा करा रहे हैं। तो अगेन आपको पहले 25 वाला देखना पड़ेगा सेक्शन, 25 में लगता है नहीं लगता, अगर 25 में निकल गया तो अगला सेलर अगर बड़ा होगा 10 करोड़ से ऊपर तो वो आपका टीसीएस कर लेगा, मतलब आपने 25 कर लिया। ये मेन जो थे प्रोविजन इसके वो मैंने डिस्कस करे हैं मैंने। अब इन्होंने बेनिफिट दिए रियल एस्टेट सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हम हर बजट में ये लोग कुछ ना कुछ घोषणाएं कर रहे हैं बेनिफिशियल। एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं लोग 80IB में। अभी भी अपन जानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो होती है उसमें 80IB का डिसीजन मिलता है 100%, 60 स्क्वायर 90 स्क्वायर मीटर सब्जेक्ट टू जो होते हैं उनके हिसाब से 100% प्रॉफिट रिडक्शन मिलता है। उसमें एक कंडीशन ये थी कि 16 से लेकर 21 तक उनकी अप्रूवल, मैक्सिमम 31 मार्च 21 तक अप्रूवल आ जानी चाहिए स्कीम की। अब इन्होंने इसको कर दिया एक्सटेंड 1 साल और, 20 तक आप अप्रूवल ले सकते हो अफोर्डेबल हाउसिंग की। इसके अलावा एक और स्कीम लेके आ रहे हैं लोग, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। जो लोग बाहर काम करते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह काम करते हैं उनके लिए कोई स्कीम लेके आएंगे ये लोग, जहां वो लोग रह सकें, जैसे रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट। वो स्कीम अभी अनाउंस नहीं की इन्होंने, 31 मार्च 22 तक स्कीम अनाउंस होगी। उसके अंदर अगर आप काम करोगे तो आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगा, जैसे अभी मिलता है अफोर्डेबल हाउसिंग, वैसे होगी स्कीम रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट। एक अभी आपको बताया कि जो रियल एस्टेट में जो सेल करते हैं, रियल एस्टेट में प्लॉट सेल करते हैं, बिल्डिंग सेल करते हैं, उसमें डीएलसी वैल्यू से कम पे अगर आप सेल करोगे तो डीएलसी वैल्यू मानी जाती है सेल वैल्यू। डीएलसी वैल्यू सपोज किसी की 1 करोड़ रुपए है और आपने सेल कर दिया 80 लाख रुपए में, तो इनकम टैक्स पर्पज से 1 करोड़ रुपए मानी जाएगी सेल प्राइस। इसी तरह खरीदने वाले के ऊपर भी सेक्शन है कि कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, डीएलसी वैल्यू से कम पे कर लेता है परचेज। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 80 लाख रुपए में परचेज कर ली, तो 20 लाख रुपए उसकी भी इनकम मानी जाती है, खरीदने वाले की भी और बेचने वाले की भी। लास्ट बजट में इन्होंने इसको तक 10% तक अगर ये डिफरेंस है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। ये डिफरेंस अगर 10% तक है इसको हम इग्नोर कर देंगे। इस बजट में फॉर द लिमिटेड पीरियड ये डिफरेंस इन्होंने कर दिया अलाउ 20% तक। कब तक है? 30 जून तक ये अलाउ है केवल 20% तक। तो अगर आपने डीएलसी वैल्यू से 10% 20% कम पे भी कर दिया है तो भी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन कब? फर्स्ट अलॉटमेंट को ही, मीनिंग दे रहे भाई कि कोई रीसेल पे नहीं होगा। मतलब ये किसी बिल्डर ने अगर बेचा है मकान, विला, फ्लैट, वो 20% नीचे तक बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन 30 जून तक की कंडीशन है और 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए कंडीशन। उसका अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए सेल कंसिडरेशन है। हाँ नहीं वो बिल्डर तो कितने ही बेचे। हाँ, मतलब एक आदमी को बेचेगा एक फ्लैट। कई आदमी को बेचा था मैंने। हाँ, तो 2 करोड़ रुपए हर के हो जाएगी वो। हाँ,
हर ट्रांजेक्शन की 2 करोड़ रुपए हो जाएगी वो। Respect of each flat or the house sold. हाँ तो बिल्डर जो है अभी बिलो डीएससी रेट पे बेच सकता है 20% तक, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ये एक अच्छा वेलकम है कि कोविड टाइम में अभी काफी बिक भी रहे हैं फ्लैट, और डीएससी जगह हाई हो गई कहीं रेट, जो एक्चुअल कॉस्ट जो है कम हो गई है, तो ये आप 20% तक बेच सकते हो। ओनली फॉर पीरियड 30 जून तक का है पीरियड केवल ये। बैंक से कराया इन्होंने 12 नवंबर से कराया इन्होंने, तो बेच चुके हैं उस पर फायदा मिल जाएगा। हाँ 12 नवंबर से 30 जून तक में है। यही दिया रियल एस्टेट में बेनिफिट इन्होंने। ट्रस्ट के लिए कुछ एक इन्होंने कंडीशन करी हैं। अभी तक जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें 1 करोड़ रुपए तक जिनकी रिसीट्स होती है उनको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एजुकेशन चला रहे, स्कूल चला रहे हो आप, 1 करोड़ रुपए तक की आपकी रिसीट्स है तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट रहती है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत भी नहीं होती है। अब ये लिमिट उन्हें 1 करोड़ से कर दिए 5 करोड़ रुपए। इसी तरह हॉस्पिटल में भी स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें भी अगर 1 करोड़ रुपए तक की रिसीट होती है तो कोई इसको लेने की जरूरत नहीं थी अप्रूवल की, और उसका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। 1 करोड़ से ऊपर लेनी पड़ती है उनको अप्रूवल। अब ये 1 करोड़ से लिमिट करके 5 करोड़ रुपए कर दिए। तो 5 करोड़ रुपए तक की सीट्स अगर है स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की या हॉस्पिटल की स्पेसिफिक, तो उनको कोई अप्रूवल नहीं, 5 करोड़ से ऊपर लेने की रिक्वायरमेंट होगी। अब एक है कॉर्पस फंड। ट्रस्ट के जो समझते हो मैं आपको बता दूं, मैं ट्रस्ट में क्या होता है कि सभी रिसीट्स जो होती है ना टैक्स हो जाएंगी, लेकिन उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। जो भी आपकी रिसीट्स होती हैं 12 में अगर आप करवाते हो रजिस्टर्ड, तो आपको 85% आपको खर्चा करना पड़ता है, अदरवाइज जितनी रिसीट्स आएंगी ना सभी टैक्सेबल हो जाएंगी वो। लेकिन जो कॉर्पस आता है ना फंड, कॉर्पस फंड, कि भाई ये फंड मैं देता हूँ डोनेशन स्पेसिफिक डायरेक्शन से कि भाई ये बिल्डिंग के लिए काम आएगा। जो कॉर्पस फंड होता है जो देने वाला होता है कि डायरेक्शन देता है कि साहब मैं इस पर्पस से इसको दे रहा हूं, मैं ऐसा फंड को आप 85% के लिए काम में इसको एप्लीकेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपको। कॉर्पस फंड में कोई करना नहीं पड़ता, एप्लीकेशन नहीं करना पड़ता। लेकिन अब इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि ऐसा फंड अगर आपके पास आता है कॉर्पस फंड जिसमें आपको 85% खर्चा नहीं करना पड़ता है, उसको आपको स्पेसिफाइड मोड्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, बैंक की म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको कहीं एडवांस दे दिया, उसको काम में ले लिया आपने, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों काम में ले लिया, ऐसा नहीं है। उसको आपको अलग से पार्क करना पड़ेगा, अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कॉर्पस फंड को, तभी उसका आप बेनिफिट ले पाओगे कि आपको उसका 85% खर्चा नहीं करना पड़े। नहीं एस्क्रो अकाउंट नहीं, एफडी फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड जो भी है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा केवल। इसी तरह लोन्स एंड बोरोविंग के लिए भी है। कोई भी अगर आप ट्रस्ट कोई लोन लेता है और उससे खर्चा करता है तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप उसका इंस्टॉलमेंट रिपे करोगे, जब लोन का रिपेमेंट करोगे तो एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। हालांकि अभी भी यही चल रहा है, कोर्ट के रूलिंग के द्वारा डिसीजन जो है अभी भी यही बात है। लेकिन अब इन्होंने कानून में लेके आ गए लोग, अब लोन्स और बोरोइंग के जो खर्चा करा वो खर्चा नहीं माना जाएगा। लेकिन जब उसका रिपेमेंट करोगे आप लोन का, ईएमआई पे करोगे या अदरवाइज पे करोगे, तब उसको एप्लीकेशन मान लिया जाएगा उसका। इन्होंने कानून में लिया है लोग, जो अदरवाइज भी था, अदरवाइज भी एज पर कोर्ट रूलिंग ऐसे ही चल रहा था मेथड। एक ये था कि सपोज किसी ट्रस्ट की इनकम 100 रुपए हुई और खर्चा कर दिया उसने 125 रुपए। ट्रस्ट की किसी साल में इनकम हुई 100 रुपए और खर्चा कर दिया उसने 125 रुपए, तो 25 रुपए को सेट ऑफ कर देता था नेक्स्ट ईयर में आकर, भाई हमने इस साल तो खर्चा अधिक कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर में हमें बेनिफिट दो। ये भी सेटल्ड इशू नहीं था, लेकिन कुछ डिसाइडेड केस थे ऐसे कि भी ये 25 रुपए आपको नेक्स्ट ईयर में खर्चा मिल सकता है आपको। अब इन्होंने कहा नहीं साहब, इस 25 रुपए जो आपने एक्सेस किया ना उसका सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर में जाकर नहीं मिलेगा उसका। यही बात खत्म हो गई, 100 रुपए कर दिया, खत्म बात। नेक्स्ट ईयर फिर आप खर्चा करोगे पूरा 85% खर्चा। हर साल का सेपरेट दिखा जाएगा, पुराने साल का आप बेनिफिट नहीं ले सकते, आप कैरी ओवर नहीं कर सकते आप।
ट्रस्ट वाले कोई हेडसेट है ट्रस्ट वाले? जूम पे पार्टिसिपेट होंगे। हाँ जूम के पास, अच्छा राइट राइट ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन है कोई? हाँ तरुण जी। अभी तक कुछ कोर्ट केसेस में ऐसा किया हुआ है कि आप लिस्ट टू क्लेम, सेटल इशू नहीं था लेकिन कुछ एक केसेस में अलाउ किया हुआ था कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस में। तो आप राजस्थान हाई कोर्ट महाराजा मेवाड़ फाउंडेशन ट्रस्ट का राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है, और एक गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है राजस्थानी गुजराती समाज का। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो इन्होंने इसको ओवरऑल कर दिया कि अब आप नहीं ले सकते, अब आप अपन कभी लेते हैं इसलिए आपको ध्यान नहीं है ठीक है सर। बाजार में ऐसा क्या देखा बजट में है? मार्केट जो सेंसेक्स है ऐसा क्या देखा? मार्केट में जो मुझे लग रहा है ना, मार्केट में बड़ी वाइड स्प्रेड थी कि साहब कोविड के कारण कोई टैक्स लगेगा, कोई एडिशनल टैक्स लगेगा, सरचार्ज लग जाएगा कोई। तो उस चक्कर में पहले से प्रेशर रखा था मार्केट में कि सब सारे जो FII लोग थे वो सब अपना शेयर बेच रहे थे कि उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट को टैक्स लेके आएगी, नया टैक्स, कोई कोविड टैक्स नाम था कोई, वो लगा नहीं तो लोग खुश हो गए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो खैर एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, लेकिन ये लगता है मुझे कि लोगों ने अगर टैक्स लगाएंगे बस बात खत्म और कोई? तो थैंक यू, दैट्स ऑल। Thank you so much, sir. I now invite Keshav sir for his take on the various proposals under GST. Sir. Questions पहले Okay. If any questions on income tax. So sir, the first question that we have is what particulars of return of deductee are to be collected by deductor, and yes sir. Yes. So sir, the first. So the first question that we have is what particulars. Is what particulars of return of deductee are to be collected by the deductor, and in furtherance of the same question we have whether a declaration can be sufficient from deductee. जो इन्होंने एक्ट में दिया, इनका क्वेश्चन ये है कि जो अपन बात करें नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, जिस केस में अगर रिटर्न फर्निश नहीं किया तो हमें हायर रेट से TDS काटना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कि हम क्या लें, हम तो हमारी समझ जिससे अपना बात भी हुई है कि एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा, आपको एविडेंस करना पड़ेगा कि आपने रिटर्न फाइल कर दी है, दैट इज इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट एज ऑन डेट। हो सकता है स्कीम में बाद में ले आए कुछ लोग पोर्टल पे कि भाई ये फाइल किया है नहीं किया है, तो वो उसके अभी एज ऑन डेट तो आपको इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन से काम नहीं होगा। Thank you, sir. So the next question that we have is, what is the definition of turnover in 194Q, whether it is inclusive or exclusive of GST? टर्नओवर अच्छा क्वेश्चन है ये। अपने जिससे पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी अपनी सेल ऑफ गुड्स के वक्त भी हुई थी, अपनी टर्नओवर इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। हमारी समझ जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी पहले, हमने भी पहले भी कहा था कि GST आप बुक्स में कैसे दिखाते हो। अगर GST का अकाउंट सेल आप करते हो, गुड्स GST का अकाउंट अलग रखते हो और अलग से जमा करा देते हो तो GST टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग ऐसे करते हो कि भाई पूरा आपने GST से आपने दिखा दिया टर्नओवर में, जो GST पे किया वो कर दिया आपने खर्चे के रूप में मान लिया उसको, तो GST ऐसे केस में इंक्लूड हो जाएगा। नॉर्मली हम अकाउंटिंग ऐसी करते हैं कि एक्सक्लूसिव करते हैं, अपन जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड, जहाँ GST को अपन सेपरेट पार्क कर देते हैं। तो अगर अपन ऐसे अकाउंटिंग कर रहे हैं, GST को सेपरेट पार्क कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, उस केस में टर्नओवर में शामिल नहीं होगा फॉर आवर पर्पस। तो मतलब जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू, या मैं मेरे ऊपर लगेगा नहीं लगेगा 194 क्यों लगेगा, मैं अपना टर्नओवर जब देखूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या मेथड से यूज कर रहा हूँ मैं। अगर मैं एक्सक्लूसिव मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, तो मैं टर्नओवर में उसको शामिल नहीं करूंगा GST को। बिना GST के मैं टर्नओवर देखूंगा कि 10 करोड़ से ऊपर है या नहीं है। लेकिन सामने वाले का जब मैं करूंगा, जैसे मैं बायर का देखूंगा, मैं जब मैं बायर का 50 लाख रुपए देखूंगा तब मैं GST सही देखूंगा, उसमें लिखा हुआ आ रहा है सेल कंसिडरेशन लिखा हुआ आ रहा है वर्ड। तो अगर मैं जब सामने तो मैं उसको उसमें GST भी लूंगा। मैं बायर का जब 50 लाख रुपए की लिमिट करने के लिए
लेकिन वो तो 206C1H में है या 194Q में भी ये रहेगा, गुड्स परचेज एक्सीडिंग 50 lakhs। हाँ, मतलब जीएसटी इसमें लिखा हुआ है कंसिडरेशन लिखा हुआ है वर्ड। जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है अपन ये मानते हैं कि जीएसटी को भी शामिल करते हैं अपन। अब कोई आ जाए, कोई FAQ आ जाएंगे कुछ तो भी मालूम पड़ेगा। अभी एज ऑन टुडे तो अपन इसको जीएसटी सहित अपन 10 लाख 4 लाख की लिमिट देखेंगे अपन, और 206 एज वेल एज 194Q दोनों पर्पज से ही। टर्नओवर में जो इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे जीएसटी में तो अपना जो बेसिक है टोटल वो पूरा टर्नओवर में जाता है। इसमें टर्नओवर में जो 10 करोड़ का टर्नओवर है उसमें सिर्फ गुड्स का टर्नओवर लेंगे या वो इनडायरेक्ट इनकम उसको भी जोड़ेंगे? टर्नओवर में वो ग्रॉस रसीट्स नहीं है इसमें वर्ड, टर्नओवर है इसमें। जो वर्ड है टर्नओवर है ना, टर्नओवर है इसमें वर्ड। ग्रॉस रसीट्स अगर वर्ड होता है ना तब अपन सभी शामिल करते हैं अपन। भी करते हैं और सेल्स ऑफ गुड्स भी करते हैं, टर्नओवर दोनों का टोटल होगा। हाँ, ये तो दोनों का हो जाएगा टर्नओवर में। जॉब वर्क भी करते हैं तो टर्नओवर में शामिल होगा वो। बाकी उसका भी और भी गवर्नमेंट FAQ लिया है अभी इस पे। और भी ओके, थैंक यू। Thank you, sir. I now invite Keshav sir for his take on the various proposals